Good evening, dear delegates. My voice is clear now. Is voice clear? Yes, yes. Okay. Good evening, dear delegates. I welcome you all to free Panchabhautik lecture series. This is our lecture on Bhasmak Rog. So we will be going through complete Panchabhautik approach, how the Samprapti happens. Because what we have learned in Charak Samhita is like three dosh wise, we'll be seeing the guna of those doshas which are increased, and according to those we will be treating the Bhasmak patients. Okay, so I welcome you all to the Panchabhautik lecture series. This is earlier we had many lectures on different diseases, so you can go through Rasa Shivam Ayurveda channel, Rasa Shivam Panchabhautik channel on YouTube, and there is one more channel of IIAS Integral Indianopedia of Ayurveda Schoola, where there also some recordings of the earlier lectures are being posted. So you can go through those, both of this channel, you will find the recordings of the previous classes. So today, Dr. Sandesh Chauhan sir, he is with us, who will be enlightening us on Panchabhautik approach towards Bhasmak Rog. I like to, like many of the participants are the older participants itself, but you all know Dr. Sandesh Chauhan sir, but I like to introduce him for the new participants. Dr. Sandesh Chauhan sir is practicing Panchabhautik Chikitsa, purely Panchabhautik Chikitsa in Mumbai, and he is a young doctor. And if you do today's lecture, you will understand that his teaching skills are very good. The way he makes the concepts us to understand, and he try to correlate it with our daily examples, routine examples. Okay, so you will love the lecture and you will understand it in a very easy manner. Because if we understand the samprapti, if we are able to break the samprapti in a easy way, the complex things become more easier, and we will be able to treat the diseases in much simpler ways. Okay, because when we go through such cases or complicated cases, we are not able to simplify it. So that is the specialty of Dr. Sandesh sir. He simplifies those things and he make it in a much better way, comparing it with our daily routine examples. Okay, so we'll be starting without any delay. We'll be starting the lecture. Dr. Sanjay Chavan sir, please start the lecture. Yes, yes. Okay, we will start with it. Just a moment. Huh? So have you started the recording? Yes. Okay. So today's topic is भस्मक निदान. और हम लोग ये डायग्नोसिस कैसे कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी तर्क से हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से भी कोरिलेट करते हैं, बट दिस पेशेंट इज़ नॉट हाइपरथायरॉयड. ओके. और यंग पेशेंट है, तो उसका केस पेपर भी मैंने शेयर किया, और विद इन 2 मंथ्स वी गॉट गुड रिजल्ट्स. विद इन 2 मंथ्स. क्योंकि ये पेशेंट में क्या होता है ना, कि उनको बताना नहीं आता है डॉक्टर्स को कि एपेटाइट लॉस करने, हम हमेशा अग्नि की वृद्धि की चिकित्सा करने के लिए देखते हैं, बट एपेटाइट एपेटाइट कम करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, ये बहुत कम बार होता है. अगेन हम लोग ने सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं लास्ट 8 ईयर्स में. ओके. लास्ट 8 ईयर्स में सिर्फ 2 पेशेंट है कि ज़्यादा भूख लग रही है, अत्यग्नि, टिपिकल अत्यग्नि लेकर आ रहे नहीं, और वो पित्त वृद्धि के पेशेंट नहीं थे. ठीक है, पित्त वृद्धि अलग और अत्यग्नि अलग. अत्यग्नि और भस्म नाम से व्याधि वर्णित है. मैं लघुत्रय की बात नहीं कर रहा हूँ, माधव निधन वगैरह, बट चरक में अत्यग्नि से रेफरेंस है वो. और वाग्भट चिकित्सा स्थान में अष्टांग हृदय में वो भस्मक नाम से है. ठीक है. और अप्पा जी के अगर आप बुक्स देखेंगे, जो अप्पा जी ने ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ पे आप कामला चिकित्सा अगर देखेंगे, तो कामला की चिकित्सा अगर आप ज़्यादा करते हो,
जो कामला की चिकित्सा बताए, भ्रूष कटु लवण अम्ल, ये स्त्रोतोगामी करने के लिए कोष्ठगामी करने के लिए उन दोषों को, ठीक है, और फिर विरेचन देने के लिए जो द्रव्य बताए हैं, कटु भ्रूष कटु अम्ल लवण, अगर आप तीनों पे देखेंगे तो कटु रस अग्निवायु प्रधान है, प्रधान मतलब उसका पांचोदिक संगठन है, अम्ल ये पृथ्वी प्लस अग्नि प्रधान है, और लवण ये जल प्लस अग्नि प्रधान है। तो तीनों में भी तेज महाभूत प्रधान, तेज महाभूत की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप उसकी ज़्यादा चिकित्सा करते हो कामला की, फिर अत्यग्नि या भस्मक होने की संभावना अप्पा जी ने वर्णन की है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार वहाँ पे एक रेफरेंस है पांचोदिक चिकित्सा में। सेकेंडली, जैसे मैंने दो रेफरेंस बताए कि चरक चिकित्सा स्थान में भी रेफरेंस है और वाग्भट चिकित्सा स्थान में भी रेफरेंस है। ओके, तो अभी देखेंगे कि वाग्भटाचार्य जी क्या कहते हैं इसके बारे में। सबको दिख रहा है ना स्लाइड? स्लाइड इज विजिबल, करेक्ट? जस्ट लेट मी नो इन द चैट No, sir. बॉक्स। No, sir. नो, ओके, नो, Yes, sir. ओके। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो खाने Sir. फ्रिज में से ढूंढ रही है, एंड शी नीड्स मोर फूड, Hmm. है ना? पिक में तो वही दिख रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं उसके आगे। बसमक, हेलो फ्रॉम द हंग्री साइड, माई स्टमक टेल्स मी विदाउट फूड आई विल डाई। तो ये नौबत आती है जब धातुपाक की अवस्था आती है। भाव प्रकाश जी ने दो रेफरेंस आए हैं, एक धातुपाक और एक दोषपाक। हमें हमेशा दोषों का पाक करना होता है संप्राप्ति विघटनार्थ, करेक्ट। हम लोग अगर दोषों का पाक करेंगे तो रिजल्ट आता है, धातुओं का पाक करेंगे तो भस्मक जैसे व्याधि होंगे निर्माण, ठीक है। तो हमेशा भस्मक में क्या होता है, भस्मक इसके नाम ही है, जैसे भस्मक की प्रोसीजर करते हैं हम लोग, है ना, उपले वगैरह लगाकर गोबर के, ठीक है, या महापुटो गजपुटो, ये जो कपतपुट है जो भी हो, तो उसमें हम लोग भस्म क्रिएट करते हैं, मतलब उसको जो स्वरूप है उसका उसका और डिसइंटीग्रेट करते करते उसके पार्टिकल्स हमें नैनो पार्टिकल्स में मिल जाते हैं। वैसे अगर शरीर के अंदर हो, जब जाठराग्नि इतनी तीव्र हो जाए, इतनी तीव्र हो जाए, मैं पित्त वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन पित्त वृद्धि सपोज 1+ है, जैसे पकड़ लीजिए पित्त वृद्धि और भस्मक में क्या फर्क है। पित्त वृद्धि मतलब पकड़ लीजिए शुंठी की वजह से होने वाली जलन, उसकी वजह से होने वाला दाह, ठीक है। और भस्मक मतलब आपने 10 तीखी मिर्चियाँ खाई है, ग्रीन चिली, और उसके बाद जो होने वाला दाह है, तो आपको ग्रेडेशन करना पड़ेगा पित्त वृद्धि और भस्मक में, ठीक है। और पित्त वृद्धि ये इजी टू ट्रीट होती है, अत्यग्नि ये इजी टू ट्रीट नहीं होती है, ओके। तो इनकी ऐसी अवस्था आती है, आई विल डाई वाई, बिकॉज धारणा धातु, जो धारण करने वाले धातु है उनका ही पाक होने लगता है। पाक मतलब क्या, वो नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। उसकी ये क्या है, संप्राप्ति क्या है, यदा क्षीणे कफे पित्तम स्वस्थाने पवनानुगम प्रवृद्धम वर्धयति अग्निम तदासौ सानिलो अनलः पक्वा अन्नम आशु धातुश्च सर्वान ओजश्च संक्षिपन मारियत सना स्वस्थो भुक्ते जीने तु ताम्यते। अगर भोजन नहीं मिला तो वो मरनासन्न अवस्था में आ जाता है, मतलब उस 10 या 15 मिनट्स के लिए बेहोश भी हो जाएगा शायद, ओके। तो यहाँ पे टीका में देखिए, ये वाग्भटाचार्य जी का श्लोक है, ठीक है। स यस्मिन काले कफेक्षिणे क्षयम याते अतएव स्वस्थान। स्वस्थान मतलब क्या है यहाँ पे, आमाशय, ठीक है। आमाशय में पित्त वृद्धम किम भूतम पवनानुगम, मतलब अगर सिर्फ पित्त वृद्धि हो रही है कि यहाँ पे, अगर आप ये अष्टवनिंदित अध्याय देखेंगे, चरक सूत्रस्थान 21, तो वहाँ पे भी देखो जागरण में वात पित्त दोष बढ़ता है, ऐसे आया है। सिर्फ पित्त वृद्धि होती है क्या जागरण जब होता है पेशेंट का, नहीं। वैसे ही भस्मक में भी वात और पित्त
दोनों भी ये होते हैं। मारुतेन गमन स्वभावेन पश्चात उक्तम अतएव तत् पित्तम अग्निम वर्धयते। समझ लीजिए, चूल्हे में आप चूल्हा जला रहे हो और अंदर लकड़ियां रखी है, ठीक है। जब तक आप ब्लोअर से उसको ब्लो नहीं करेंगे एयर, ठीक है, तब तक वो नहीं जलेगा। इतना जितना ज़्यादा ब्लो करेंगे, जैसे हम लोग भट्टी जब लगाते हैं कुपी पको रसन, जब तीव्राग्नि की अवस्था आती है, तीव्राग्नि जब हम लोग खदीर का लकड़ी डालते हैं, देवदार और खदीर इसकी लकड़ियाँ लगती है, जब तीव्राग्नि का समय होता है लास्ट के 8 से 12 घंटे, जो भी आप कुपी पको रसायन बनाओगे, उस समय आपको ब्लोअर से इतना ज़्यादा बार उसको ब्लो करना पड़ता है, बार बार, क्योंकि वो लकड़ियाँ जलने में समय लेती है, दीपाग्नि, मध्यमाग्नि और तीव्राग्नि। तो बस लगभग ऐसे समझ लिए कि जितना ज़्यादा ब्लो होगा उतना ज़्यादा वो अग्निकाले अवसा असा असौ अनलो जाठराग्नि स अनिला। अनल मतलब जाठराग्नि, अनल मतलब उसका पर्याय नाम है ना जाट, तो यहाँ पे हम लोग को जाट, अनल का लिटरल मीनिंग अग्नि है। शारीर भाव के लेवल पे हमें जाठराग्नि लेना है। स अनिला पवन सहितो अन्न अनंतरम पक्व्या भावाचात वो धातुओं की तरफ जाने लगता है। इसके लिए बार बार उसको खाना चाहिए। खाना मतलब क्या है, जो भी आप खाना खाते हो किस चीज़ के लिए खाते हो, मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में आंसर दो। किस चीज़ के लिए आपको खाना लगता है, क्यों खाते हो आप खाना? भेषज एनर्जी को प्राण कहा है या आहार को प्राण कहा है? एनर्जी चाहिए सर। और एक ही रेफरेंस है, आहार भेषज दोनों भी एक ही है। भेषज को प्राण कहा है कि आहार को प्राण कहा है, ठीक है। मतलब आप जिंदा रहने के लिए खाना खाते हो। जिंदा रहने के लिए खाना खाते हो मतलब क्या, जिंदा आप तभी रह सकते हो जब आपकी सभी के सभी धातु या शरीर के जो 13 भाव है, 13 कौन से, 7 धातु 3 मल, ओके, और क्या है 3 दोष, तो ये जब सम स्थिति में रहेंगे तब आपकी शारीरिक अवस्था टिकी रहेगी, ठीक है। इसके लिए जो पर्याय शब्द आते हैं, मैं हमेशा इसके ऊपर स्ट्रेस करता हूँ, जो पर्यायी वर्ड आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी सबके मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होते हैं, वो समानार्थी भले आज हम लोग बिफोर लेक्चर शायद आपको पता नहीं होगा, बट वो उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, ठीक है। तो तब उसके बाद वो धातुओं का पचन करने लगती है। तो जिंदा रहने के लिए अन्न, तो अन्न मतलब क्या है, अन्न की अगर आप उत्पत्ति देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, तो आपको पूरा श्लोक रिमाइंड करता हूं मैं आपको। आत्मनो आकाश संभूतः आकाशात वायु वायवात तेजः तेजात आपः आपात पृथिवी पृथिवीत अन्नः अन्नात औषधया। ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक है, पांचोतिक उत्पत्ति सिद्धांत, पंचमहाभूत उत्पत्ति सिद्धांत। तो उसमें अन्न ये किससे आता है, पृथ्वी से आता है, ये ध्यान में रखना। उसकी निर्मित वहां से बताइए, बट हम जब खाना खाते तो आप महाभूत भी उसमें सम्मिलित होता है। जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो, भले वो कोई भी आहार हो, कटु रसात्मक हो या मधुर रसात्मक हो, बट वो उपचय करेगा, वो उन अवस्था पाक में से जाएगा। अगेन पाक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवस्था पाक और विपाक, क्योंकि पाक ही देखना है हमें, धातुओं का पाक देख रहे हैं हम लोग। ये अवस्था होने के बाद भी ये फटाफट होता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। इस अवस्था पाकों का जो प्रोसीजर है, जितना समय लेना चाहिए, जैसे आपा जी ने कहा है कि आमाशय से लघ्वांत्र में आने के लिए 2.5 से 3 घंटा समय लगता है। परिणाम शुल्क के बारे में उन्होंने उनके ग्रंथ में लिखा है, पांचोदिक चिकित्सा भाग 1 में, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसका संदर्भ देख सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 2.5 से 3 घंटा आमाशय से लघ्वांत्र में आने के लिए लगता है, जिसको हम लोग मधुर अवस्था पाक कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्रोसीजर बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज द पाक, अवस्था पाक मतलब अवस्था के अनुसार होने वाला पाक, ये सब प्रोसीजर जल्दी जल्दी होने के बाद वो धातुओं की तरफ रुख करता है, ये हमें समझना है। आशु पुरुषम मारय मतलब क्या,
जो पुरुष नामक जो संज्ञा है, ठीक है, उसको शरीर प्लस चेतना इज इक्वल टू पुरुष, तो वो तुरंत मार देगा अगर धातुओं का पाक वो करती है तो। कौन? जठराग्नि। किसके साथ? पवनानुगम, वायु के साथ। और वायु कौन है वहां पे? समन वायु है। किम कुर्वन् ओजस् संक्षिपन संहरन विनाशयति विनाशयति इति अर्थः। ननु पित्ता पित्ता अनिलयोः द्वयोः प्रकृतत्वात् स पित्ता अनिलो नलः इति वक्तुम युक्तम स्यात्। मतलब वही मीनिंग है कि पित्त और अनिल जब भी आएंगे साथ में, मतलब पित्त दोष यहाँ पे खास करके पाचक पित्त लेना है हमें, और अनिल मतलब समान वायु लेना है। अनिल मतलब वायु। पित्तम वह्निर्वह्निजम वा इति कृत्वा तदानीं जाठराग्निना सह एकतां प्राप्तम पित्तमिति सा अनिलो अनल इति निर्दिष्टम। ठीक है, उसको कहा है जब जाठराग्नि वो समान वायु के साथ संपर्क में आती है तब उसको ये वर्ड आया है, स अनिलो अनल निर्दिष्ट। स अत्यग्नि पीड़ितो ना पुरुषो भुक्ते स्वस्थ स्यात्। जब भी वो खाना खाएगा तभी स्वस्थ होगा। जीर्णे तु ताम्यति, मतलब ताम्यति मतलब एकदम लो फील हो जाना, एकदम मैं सिंकोप नहीं कहूँगा बट हो सकता है, जा सकता है पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ऐसा बताता था ये वाला भी कि अगर वो नहीं मिला तो पित्त वृद्धि मतलब क्या? चिड़चिड़ हो जाए सिर्फ, है ना। वो क्या पेशेंट बोलते हैं कि शिरशूल हो रहा है और चिड़चिड़ हो रहा है। पेशेंट ऐसा बोलता है कि मैं एकदम ऐसा ये हो जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा, बट ये पेशेंट ने बताया था जीर्णे तु ताम्यते उपतप्यते, मतलब ताम्यति मतलब उपतप्यते। तो जीर्णे तु ताम्यति, जैसे ही खाना पच जाता है उसका तो उसको ताम्यति। तम, तम मतलब क्या? अंधेरा। तो अंधकार मतलब हॉलोनेस पकड़ लीजिए यहाँ पे वर्ड, लिटरल मीनिंग क्या है? हॉलोनेस। तो हॉलोनेस मतलब क्या? शरीर आकाश का अवकाश निर्माण हो रहा है, जहाँ पे धारणा धातुआ ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी उपचय के बाद, सॉरी पचन के बाद उपचय होना चाहिए था धातुओं का, बट अभी वो नहीं हो रहा है। ताम्यति अनेक अर्थत्वात् धातु नाम उपतापार्थम ताम्यति, मतलब धातुओं का उपताप होता है, जैसे ज्वर में बताया है उपतप्त। ठीक है, और एक संप्रप्ति में आया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तम एकल लक्षणे अपि प्रात अध्यदिष्टः। ठीक है, तो हमें अभी दो चीज़ें हैं जिसको टारगेट करना है। मैंने ज़्यादा संहिता के श्लोक नहीं, सिर्फ ये मुझे आपको बताना था, इसके लिए मैंने ये किया। फिर से ऊपर का लाइन पढ़ते हैं, यदा क्षीणे कफे पित्तम स्वस्थाने पवनानुगम। तो स्वस्था मतलब आमाशय के यहाँ पे ये हो रहा है सर, आमाशय और ग्रहण के यहाँ। तो वहां पे आपको जब भी कफ क्षीण हो जाएगा, कफ मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूत, जब जब वो कम हो जाएंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब भी आप चिकित्सा करने वाले हो तो आपको मैं आपको ना एक स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर मुझे आप बताइए कि इज दिस लॉजिक इज राइट और नॉट। दिख रहा है सबको स्लाइड? ये क्या है? कोई बताएगा? लिखा तो है बट स्टिल गौर से देखना उसको, क्या दिख रहा है ये? क्या है ये? फायर ब्लैंकेट ठीक है वहां पे। वो तो क्या कर रहा है वो आदमी जो फायर फाइटर है, वो क्या कर रहा है, जो ड्रम में जो आग लगी है उसके ऊपर वो ब्लैंकेट ओढ़ रहा है। आपने हिंदी सिनेमाज में देखा होगा, है ना, वो जब वो जो घर की बहू या कोई औरत या इंसान रहता है तो गाँव वाला जो हीरो वगैरह रहता है उसमें से वो तुरंत जाकर वो ब्लैंकेट ओढ़ देते हैं, करते हैं ऐसा। मतलब जब भी आग बड़ी होती है या पानी कभी डालते हैं ऐसा, मूवीज़ का ही याद करो आप, जब भी वो घर में बड़ी आग लगती है वो क्या पानी डालते बैठते हैं क्या? आज जो पानी यूज़ होता है ना वो कार्बोनेटेड वाटर है, ये ध्यान में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है उसमें ज़्यादा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है भूषण जी ने, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करने के लिए। ठीक है, सीधा बात है। तो ब्लैंकेट ओढ़ना मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? और इसका मैं और एक उदाहरण देता हूँ व्यवहार में, जो चिकित्सा में बताया है। ब्लैंकेट ये पृथ्वी महाभूत है और आपका जो बड़ा वाला अग्नि है
वो तेज महाभूत है। करेक्ट? ब्लैंकेट ये पृथ्वी महाभूत है। और जब भी आपको बड़े पैमाने में आग बुझानी है, तब आपको क्या लगता है? पृथ्वी महाभूत लगता है। आप पानी से आग बुझाते बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? दो टाइप के आते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर। करेक्ट? वो जब आग जहाँ पे लगती है वहाँ के मूल स्थान पे हम लोग को वो डालना होता है, स्प्रे करना होता है। वो स्प्रे करते हैं तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना बाहर आने के बाद। यस और नो? करेक्ट? तो इस वजह से हमें क्या करना है, जब भी आप भस्मक या पित्तवृद्धि की पकड़ लो, या नहीं है बट पित्तवृद्धि इज डिफरेंट, भस्मक इज हाई लेवल का प्रदीप्त हो गया अग्नि। जब भी आपको ये करना है तब आपको पृथ्वी महाभूत यूज करना पड़ेगा हमेशा। अगर आपने पृथ्वी महाभूत यूज नहीं किया, अगर आप सिर्फ जल महाभूत जैसे पकड़ लीजिए, कोई भी मेडिसिन दे रहे हो आप, परिपाठादि काढ़ा वगैरह, तो रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। ठीक है? मैंने दिया है बट बाद में मुझे थोड़ा समझ में आया, और जब उसके लक्षण शांत हो गए तब मैंने दिया है। हार्डली 2 महीने दिया है मेडिसिन। ठीक है? हार्डली 2 महीने। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिंसिपल समझ लो। आप आपके मेडिसिन दे दो, बट ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए कि पृथ्वी महाभूत को बढ़ाओ, तब जाकर तेज महाभूत का शमन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जल्दी नहीं मिलेगा उसको रिजल्ट। ओके? जल महाभूत से करते बैठेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा तुरंत आपको। आप जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स, हर यहाँ पे ये होता है, देखो, हर फ्लोर के लेवल पे वहाँ पे फायर बकेट रखी हुई रहती है, या स्टेशन पे देखो फायर बकेट क्यों रखी होती है? क्योंकि जब भी आग लगती है तो पहले मट्टी डालना, ये वहाँ पे भी संकेत है। व्यवहार में भी देखो, बाहर के जगत में भी वही प्रिंसिपल यूज होता है कि अगर आग जल्दी बुझानी है, खास करके तीव्र अग्नि, क्योंकि स्टेशन को आग अगर लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी चर्चगेट स्टेशन पे लगी थी। करेक्ट? अभी की, आज या कल की ये घटना है। ठीक है? मुंबई में। तो वहाँ पे आपको ये इस तरफ आपको देखना होगा कि पृथ्वी महाभूत को बढ़ाना है। ठीक है? अभी हम लोग बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आपको इसमें कुछ डाउट है क्या, कि आपका कुछ अलग ओपिनियन है तो वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी सीखने को मिलेगा, है ना? इसमें कुछ डाउट है? सर यूजुअली हम जब ओबेसिटी के पेशेंट्स देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि पृथ्वी और आप महाभूत इनका ज्यादा बढ़ गया है, और ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से उष्ण तीक्ष्ण चिकित्सा देते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ऑपोजिट है, राइट? करेक्ट। क्योंकि वहां पे भी बस्ती देते सिर्फ, समय भी लेखन बस्ती देते हैं, जिसमें नहीं क्या गोमूत्र है या उष्ण तीक्ष्ण कल्प है, और ओरली मेडिसिन भी हम वैसे ही देते हैं। नहीं, यहाँ पे एक समझने की बात है। अगर आप अष्टोनिंदित अध्याय फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे भस्मक के टाइम हम लोग सिर्फ जठराग्नि की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ मेधा धातु अग्नि कंट्रोल करना है आपको। ये दोनों, इसमें फर्क है। ठीक है? गंभीर धातु इसके लिए ओबेसिटी में टाइम मतलब लगता है ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि अगर आप सप्त धातुओं को 7 मंजिल की इमारत समझेंगे, 7 फ्लोर बिल्डिंग है सपोज, तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो अगर आप लिफ्ट से भी जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर की तुलना में फोर्थ फ्लोर में जाने को लिए तो समय लगेगा, 10 सेकेंड तो एक्स्ट्रा लगेंगे, या चल के जाएंगे तो 3 या 4 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। तो मेद धातु ये गंभीर धातुओं में आ जाता है। मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, उस सेंटर में मेद धात्वग्नि को कंट्रोल करना है। इसके लिए गुरुचा अपतर्पणम, ये चिकित्सा सूत्र आया है। गुरु भोजन देना है बट अपतर्पण हो ऐसा देना है, मतलब मेद धात्वग्नि का शमन भी हो जाए और अपतर्पण भी हो जाए। और यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे आहार दे रहे हैं कि जिससे वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए पचन। ठीक है? तो उस वो ताकत से पृथ्वी महाभूत में जितना आप गरिष्ठ भोजन बताएंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। ओके? Before going to that treatment part, I would like to announce one thing कि हम लोग
IIAS के थ्रू एलाबरेट करके एक मास्टर क्लास का आयोजन कर रहे हैं जो 60 डेज का रहेगा, जिसमें पांचोदिक चिकित्सा सिद्धांत, पांचोदिक कल्प, यकृप्रिया मूत्रपिंड और उसके सभी जो जितने भी क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, आग्नेयनाद वगैरह, ये सब देखने वाले हैं। 20 गुरुवादी गुण भी रहेंगे। बाह्य चिकित्सा भी इसमें रहेगी जो पिछली बार नहीं थी। और इस बार हम लोग थोड़ा महाभूतों की चिकित्सा की तरफ ज़्यादा रुख करने वाले हैं। मतलब लास्ट टाइम हम लोग ने सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, बट वी आर गोइंग डीप दिस टाइम। ओके। और 20 गुरुवादी गुण लास्ट टाइम नहीं थे, और बाह्य चिकित्सा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। उसमें आपको पंचमहाभूत इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें हम लोग पृथ्वी महाभूत का क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, आप महाभूत का क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, तेज महाभूत का कैसे आपको अप्लाई करना है ओपीडी में आने के पश्चात गुणों के द्वारा, ये सब देखेंगे। उसके बाद उत्पत्ति विलीनीकरण सिद्धांत जो आपा जी ने कहे हैं, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, आम्लक्षार सिद्धांत, इट्स वन ऑफ द बेसिक सिद्धांत है। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझता है पांचोदिक चिकित्सा में। ठीक है। अभी के लिए भस्म की जो व्याधि है, ये हमारा क्षारधर्मी व्याधि है, हम लोग उसको अम्लधर्मी चिकित्सा करने वाले हैं, अम्लधर्मी कल्पों के द्वारा चिकित्सा करने वाले हैं। ये आपको तभी समझेगा जब हम लोग वो लेक्चर के थ्रू जाएंगे। औषध सेवन काल, ये बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। पाँच मतलब सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2, शाम को 6, बाद में अपान काल, उदान काल, व्यान काल, ये सभी में, या निशी काल का एक बहुत अलग अलग मेडिसिन बहुत कम है, बट उसमें ही यूटिलाइज करते हैं हम लोग। अध्वशोष आपा जी का एक औषधि निर्माण और अध्वशोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बुद्धिंद्रिय चिकित्सा, जहाँ पे वैद्य ज़्यादा लक्षक नहीं देते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट बाय द वैद्य। मतलब बुद्धिंद्रिय की वजह से आप कैसे संप्राप्तियाँ क्रैक कर सकते हो, ये भी आपको हाँ, ये देखेंगे। और गुरुवादी गुण, ये फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग इन लास्ट 3 बैचेस में हम लोग ने नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग दिस। ओके। पूरा डीप में देखेंगे कि धातुओं के ऊपर क्या होता है, मलों के ऊपर क्या होता है, क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे है। ऐसा नहीं कि ऑपोजिट है, मतलब एक बार लघु पढ़ लिया तो गुरु गुण का दवा देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इट्स डिफरेंट, नहीं तो आचार्य खुद भी मेंशन नहीं करते थे ये चीज़। ठीक है। एंड देन कल्प आ जाएंगे आपके, फल त्रिकादि गुकुल परिपाटी, मतलब जितने भी कल्प आपा जी ने एक्सप्लेन किए हैं, वी आर कवरिंग ऑल दोज कल्पस। ओके। और थोड़ा सा मतलब इस बार टाइम थोड़ा बढ़ा है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट कल्प है उसमें से भी, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम, लास्ट टाइम पाचक योग नहीं थे, अब इस बार पाचक योग भी ले रहे हैं हम लोग। सो नागरादि क्वाथ, ये शोभांजन की नहीं वगैरह नहीं था, मूत्र विशोधन क्वाथ भी नहीं था आई गेस लास्ट टाइम, मतलब ये नहीं थे, बल्य योग भी नहीं था, बहुत सारे कल्प नहीं थे जो अभी ऐड किए, मोर देन 20 कल्पस वी हैव एडेड दिस टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाह्य चिकित्सा, इसमें से हम लोग ने कुछ कल्प लिए थे, बट क्लिनिकली जो अभी अनुभव आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे दग्धव्रण लेप है, मेरे बच्चे को ही बर्न हुआ था गैरिक शोधन के टाइम, और पूरा मतलब यहाँ से यहाँ जला था। अभी मैं आपको उसकी स्किन बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज कि दग्धव्रण लेप में कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है विथ नॉर्मल स्किन। हाँ, विथ नॉर्मल स्किन। अभी आप बोलेंगे कि बाबा नहीं वो बच्चा है तो उसका स्किन तो नॉर्मल आएगा, बट और 2 पेशेंट के, क्योंकि दग्ध के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते नहीं है बार बार, करेक्ट। बट जब आपको नॉर्मल स्किन लाना है तो अंडे का प्रयोग कैसे करना है, आपा जी ने कैसे सोच रखी थी, और उसके साथ कौन सा द्रव्य यूज़ किया था, उसके बारे में भी देखेंगे। और बाद में केस डिस्कशन और डाउट सेशन। नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस विद द ऑर्गेनाइजर्स, सो वी आर कीपिंग 1 डे, मतलब 4 to 6 आवर्स 1 डे उधर परीक्षण सेशन, जो लैकिंग था लास्ट 3 मॉड्यूल्स में। ठीक है। और हम लोग को भी मतलब थोड़ी परेशानी आती है जब भी ऑफलाइन हम लोग वर्कशॉप अरेंज करते हैं, सो इट बिकम डिफिकल्ट। कि अभी देखो, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम वर्कशॉप अरेंज किया था, 25 को लोग नहीं आ पाए बिकॉज जो युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान की वजह से। ओके। तो मतलब लास्ट टाइम जो वर्कशॉप हुआ था उसमें लोग नहीं आ पाए, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी बुक किया था, बट कैंसिल हो गया एन मौके पे। तो ऐसी कुछ चीज़ें आती है, बट हम लोग 1 डे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज स्मॉल 4 to 6 आवर्स 1 स्मॉल सेशन। एक तो मेरे क्लिनिक में होगा, नहीं तो एक बड़ा हॉल हम लोग बुक करेंगे। ओके। इट विल बी लाइक दिस। तो अभी चिकित्सा के तरफ जाते हैं। और हाँ, इसका फीस तो आपको पता है कि फर्स्ट 50 आयुर्वेदा वैद्यस 11,000 और 15,000, और मंजूषा मैडम जो अभी स्क्रीन पर है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 और सर हाँ 24th ना,
हाँ 24th। 24th. हाँ 24th। 24th. तो उधर And one परीक्षण more इस thing, for उधर परीक्षण, ये जो ऑफलाइन सेशन होगा, अभी तक 15th ऑफ जून तक जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, एनरोल करेंगे, उन सबके लिए फ्री होने वाला है. बिकॉज उधर परीक्षण इज द मोस्ट, लाइक, इट इज अ की ऑफ पांचभौतिक चिकित्सा. तो ये सबके लिए फ्री होना है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया उनके लिए भी, और 15 तक जो आने वाले हैं उनके लिए भी. आफ्टर 15 जो भी एडमिशन लेगा उनके लिए उधर परीक्षण फ्री नहीं है. विल जस्ट डिक्लेयर दैट, राइट सर? यस। अब फिर से देखते हैं ट्रीटमेंट पार्ट, केस पेपर ही मैं बताऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। और ये पेशेंट में ना आपको और एक गड़बड़ दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है फ्री ऑफलाइन 1 डे उधर परीक्षण और 2 वो विल एनरोल टुडे फॉर द कोर्स। तो ये पेशेंट का ये है। और वो वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रलाइज ऐसे था। वाइस प्रेसिडेंट मतलब अच्छी खासी पोस्ट है उसकी, तो बुद्धि का भी विचार करना है। और उसको चिकन पॉक्स भी हुआ था, जो पूर्व व्याधि वृत्तांत में जो कांजिना करके लिखा है, जो नॉर्थ इंडियन से उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कांजिना को बोलते हैं ये चिकन पॉक्स या बड़ी माता, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया एंड टाइफॉइड इन चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ टेस्टिकल रिमूव्ड इन चाइल्डहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी वहाँ की पृथ्वी है ना, शुक्र धातु को रिप्रेजेंट कर रहा है। और शुक्र धातु मतलब पुनरुज्जीवन। देखो शुक्र धातु का सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, इस तरीके से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में क्या है? बी इंटरेक्टिव। फिर आगे का चिकित्सा मतलब केस पेपर भी देखेंगे। जीवन। हाँ, जीवन 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 रक्त धातु का कर्म है ना। मतलब नया जीवन। पुनरुत्पादन। हाँ, पुनरुत्पादन किसका? हर एक हेलो, नया जीवन देना सर, नया जीवन। किसको किसको देना है नया जीवन? गर्भ को? हाँ, एवरी सेल इन द बॉडी सर। एवरी सेल, करेक्ट। जो भी आपके जो लाइसिस हो रहा है ना, हिमोलाइसिस हो या कोई भी सेल का लाइसिस हो, वो जो भी हो रहा है उसको नया जन्म देने का काम शुक्र धातु का है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द गर्भोत्पादन, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। अब वो चीज़ चली गई है वहाँ से, ठीक है। टेस्टिकल रिमूव, एक टेस्टिकल। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रोसीजर ऑफ कफ रिमूवल डन फॉर द साइनोसाइटिस। हाँ, उसने कुछ अभी मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है वहाँ पे कि पेशेंट सही से नहीं बता रहा था कि एग्जैक्टली किया क्या था कफ रिमूवल के लिए, और ये नौली धोती करने वाला पेशेंट था। उसके बाद 3 डेज इन अ वीक होता था उसको, वो भी पोस्ट ब्रेकफास्ट, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी था, ठीक है। पुरुष अवरोध है वहाँ पर। निद्रा शांत निद्रा होती थी उसको, बट और विथ स्नोरिंग होती थी, ठीक है। और मूत्र देखो, मूत्र इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 7 to 8 टाइम्स इन अ डे। शायद वो सेंट्रलाइज एसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब क्षुधा के बारे में लिखना तो ये है गैर है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये उसका चिकन पॉक्स मेन हिस्ट्री है, टेस्टिकल रिमूवल और मलेरिया टाइफॉइड। अब मलेरिया टाइफॉइड का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सामजोर वाले ये, और जब टाइफॉइड कैरियर लेकर आता है पेशेंट, तो आपको पित्त बड़ा है और पुनरावर्तक ज्वर ऐसे करके ट्रीट करना चाहिए, जो जिसका काढ़ा चरक चिकित्सा स्थान 3 में ज्वर चिकित्सा अध्याय के एंड में आया है, ठीक है। बाद में नाक परीक्षा नहीं की थी उधर परीक्षण, क्योंकि वो खाकर आया था तब, क्योंकि उसको भूख सहन ही नहीं होती थी ऑब्वियसली। नाभि से कंठ तक दाह होता था, और जब भी भूख उसकी टल जाती थी, हो जो कोई तुम्हाला मार्क काय नाही, पास वगैरे काहीच नाही. अच्छा, ते डायरेक्ट जायचंय. मार्क मत करो यार केस पे इसके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो नाभि से कंठ तक भूख अगर टलने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दाह हो जाता था और क्षुधा की अतिवृद्धि रहती थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था शीतद्वेष। ये एकदम अलग ही लक्षण दिखा मुझे, जो अनएक्सपेक्टेड है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। और उसका मैंने संप्रति लगाने की कोशिश की है, मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ द मतलब उसका जब हो जाएगा तो। क्षुधा अगर उसकी टल जाती है
अगर वो टाइम पे उसने खाने के टाइम अगर खाना नहीं खाया तो 3-4 दिनों के बाद उसको कंठदा सॉरी 3-4 दिनों तक कंठदा होता है, उसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन होता है और उसके बाद उसको कफ कोल्ड फीवर आता है। मतलब एकदम अलग, एकदम। ये कौन मार्क कर रहा है? डोंट मार्क प्लीज, तो डिस्टर्बेंस होता है ना। मार्क क्यों कर रहा है स्लाइड के ऊपर? ठीक है, मतलब ये अलग ही लक्षण दिखा था। अब मेरा निदान पक्का था। ओके, घरात जी, डॉक्टर घरात जी, प्लीज डोंट डू एनीथिंग, मार्किंग वगैरह मत करो वहाँ पे। ये क्या क्रॉस वगैरह कर रहे हो? ओके, सो मैंने ताबड़तोड़, मतलब एकदम तुरंत ही उसको, जब ये मुझे ध्यान में आया कि भस्म की कैसे, शीतद्वेष के बारे में मैं सोच ही रहा था, क्योंकि मैं जो कल्प दे रहा हूँ वो शीत गुण बढ़ाने वाले कल्प है। करेक्ट, शीत गुण बढ़ाने वाले कल्प है। तब भी मैंने सिर्फ अत्यग्नि है, इस वजह से मैंने गिरिज प्लस सुवर्णमाक्षी, हरलू और रजनीयोग दिया। ठीक है, हरलू मैंने वो जो कफ एंड कोल्ड होता था उसको समझ कर दिया था। बट बाकी के जो 3 कल्प हैं, जैसे गिरिज है, गिरिज यानी शुद्ध सुवर्ण गैरिक, सुवर्ण माक्षिक, शुद्ध सुवर्ण माक्षिक भस्म, और रजनीयोग। रजनीयोग यानी गिरिज प्लस, क्या चल रहा है स्लाइड के ऊपर? ऐसे मत करो, व्हाई यू आर डूइंग दिस? इसका कंट्रोल नहीं है क्या अपने पास? मनीष, ये मंजूषा जी, नाही सर, नाहीये. ओके, ठीक है। ऍक्च्युली तो पण 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 नाही होत. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वजह से हम लोग ने शीत गुण बढ़ाने वाली, खास करके गुरु गुण बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट है। गिरिज शुद्ध सुवर्ण गैरे की साक्षात मट्टी है कि नहीं? तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, वो ब्लैंकेट ओढ़ रहा है, या फायर बकेट का काम क्या रहता है? फायर बकेट में बालू रहती है ना, ये रेत रहती है। जब भी बड़ी आग लगेगी तब आपको रेत डालना है उसके ऊपर, बड़ी हुए अग्नि के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ने गिरिज और सुवर्णमाक्षिक ये भी बहुत ठंडा है। गिरिज के बारे में सुशिशिरम स्निग्धम, जब भी तेज महाभूत गुण बढ़ेगा, उष्ण गुण, तब जाहिर सी बात है कि रुक्ष गुण भी बढ़ेगा, है ना। और अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी भस्म के होता है तब वायु के साथ पित्त बढ़ता है। ठीक है, ब्लोअर का काम हो रहा है ना, उसको भी हमें ठंडा करना पड़ेगा उस ब्लोअर को। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर मुझे कोई गड्ढा भरना है, गड्ढा अगर कोई भरना है मुझे, या पुराना पाइप है जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, अगर मुझे उसको बंद करना है तो मुझे सीमेंटिंग करना पड़ेगा, यस और नो, या दरवाज़ा या कुछ चोक लगाना पड़ेगा, वहाँ पे फ्लैप लगाना पड़ेगा, जिससे मुझे ये होगा इंश्योर कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब मैं वो फ्लैप ओपन करूँगा और बंद करूँगा ज़रूरत खत्म होने के बाद। तो ऐसा कुछ ढक्कन, या मराठीमध्ये आपण ज्याला बोलतो झाकण लावायचा प्रयत्न करतो आपण। हाँ, गिरिज और सुवर्णमाक्षी देकर और रजनीयोग। अब बहुत सारे लोगों को शायद क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रजनीयोग में तो ये है, हल्दी है, और हल्दी तो कटुरसात्मक बताइए, प्रमेयग्न बताइए। प्रमेयग्न है, मतलब हरिद्रा द्वय बोला है ना, प्रमेयग्न इन्होंने, या निशा धात्री ये बताया प्रमेयग्न आग्र्य में। इसका मतलब ये क्लेद को नष्ट करने वाली है। अगर क्लेद को नष्ट करने वाली है तो तेज महाभूत को बढ़ाने वाली है, ये आएगा ना दिमाग में। और भस्मक में फिर रजनीयोग के गिरीश के साथ हल्दी क्यों दें हम लोग? ठीक है, ओके घरत जी ठीक है, तो ये क्यों दें हम लोग? क्योंकि अगर हरिद्रा सिर्फ तेज महाभूत अगर बढ़ाती तो कामला चिकित्सा में अंजन के लिए हरिद्रा का उल्लेख नहीं होता। कामला में नेत्र में अंजन करने के लिए 3 द्रव्य बताए हैं, हरिद्रा, आमलकी और गिरिज। वहां से ये कल्प ने जन्म लिया है आपा जी की तैल बुद्धि के द्वारा। उन्होंने कॉम्बिनेशन ट्राई एंड एरर किया और उसके बाद रजनीयोग का प्रिपरेशन हुआ है, बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद, और उनकी वजह से हमें रेडीमेड मिला है। मतलब ये जो सोच है उनकी, वो हमें रेडीमेड मिली है, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर कामला जैसे जो व्याधि में बहुपित्त कामला में या रुद्धपत कामला में, जहाँ पे पित्त बाहर की तरफ आ जाता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ जाते हैं शरीर में,
शरीर का दाह हो जाता है। आपा जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि धूप में उसको धूप दिखाओ भी मत और एक कमरे में बंद रख करके रखो उसको, धूप दिखनी नहीं चाहिए, दिन में वो जाना ही नहीं चाहिए बाहर। इतना कामला का पेशेंट संवेदनशील होता है, इतने यहाँ तक लिखा है आपा जी ने। तो वहाँ पे अगर नेत्र में अंजन बताया जा रहा है वाग्भटाचार्य जी ने वो भी, तो इसका मतलब हरिद्रा ये क्षारधर्मी उष्णता को कन्वर्ट कर कर अम्लधर्मी उष्णता में कन्वर्ट करने वाला द्रव्य है, यह हमें समझना होगा। मैंने क्या कहा है वो समझा? क्षारधर्मी मतलब बहुत ज़्यादा अग्नि जहाँ पे हो उसको सौम्य करने का काम, उस अग्नि को सौम्य करने का काम कौन करता है? हरिद्रा करती है। मतलब ये तीनों द्रव्य हरिद्रा, गिरिज और हरिद्रा एक्सेप्शनल क्यों है? अभी आमल की शीतवीर्य है और गिरिज भी शीतवीर्य है, ये समझ में आता है, बट हरिद्रा के बारे में हमारे दिमाग में डाउट आता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ कामला चिकित्सा, तो वहाँ पे रेफरेंस आता ही नहीं। करेक्ट। अब रजनी योग ये जो कल्प है ये प्लीहा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब पांचविक चिकित्सा में यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड, इन तीनों के लिए इन तीन कल्प के लिए ही, सॉरी तीन अवयवों के लिए ही या इंद्रियों के लिए ही सिर्फ कल्प चुने जाते हैं, उसमें ट्रीटमेंट हमारा हो जाता है। ठीक है, यकृत के लिए 5 कल्प, प्लीहा के लिए 2 कल्प और मूत्रपिंड के लिए 2 कल्प, और चौथा मेडिसिन अगर आपको लगेगा तो देना। तो ये इसमें मैंने यकृत के बारे में सोचा नहीं है फिलहाल, पहले फॉलो कंसल्टिंग में। ठीक है, तो हरलू मैंने शीतवीर्य है उसके लिए दिया था, प्लस ये रजनियोग क्यों दिया था? क्योंकि रजनियोग ये प्लीहा ये क्या करती है, सप्त धातुओं का धारण करने की क्षमता उस प्लीहा में है। जब भी आप प्लीहा के ऊपर उदर परीक्षण में पीड़न सत्व चेक करते हो तो 7 धातुओं का अग्नि आप सापेक्षता से देख रहे हो, मतलब यू आर एनालाइजिंग 7 धातु अग्निस एट द सेम टाइम। ठीक है, भले हो यकृत, प्लीहा, शोणितज हो, और यकृत जब आप पाल्पेट करते हो तब आप देखते हो प्राण, उदक, अन्न, स्रोतस। जब आप ये देखते हो, प्लीहा देखते हो, पीड़न सत्व या नाद परीक्षा जब करते हो उसके ऊपर, तब आप उसको देखते हो 7 स्रोतस, 7 धातु व स्रोतस। और जब आप मूत्रपिंड देखते हो तो आप देखते हो 3 स्रोतस, पुरुष, मूत्र, श्वेत। मतलब 1 मिनट के अंदर यू आर डूइंग एग्जामिनेशन ऑफ 13 स्रोतस। दैट्स वाई उदर परीक्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्लीहा और धातुओं का पाक हमें रोकना है, इसके लिए भी रजनियोग का हम लोग ने प्रयोजन यहाँ पे किया है। ठीक है, देखो कल्प 3 ही है, बहुत ज़्यादा है क्या? मतलब मौक्तिक युक्त, कामदुदा, और कौन से रहते हैं मुझे याद नहीं। मैं तो RSB के हूँ, मतलब रसशास्त्र वैशेष कल्पना, तो मुझे इतने याद नहीं है। और कौन से है कल्प है क्या दूसरे, मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये उसके बाद वाला फॉलोअप है शायद, एक फॉलोअप नहीं ज़्यादा। तो नाभि से कंठदाह उसमें 40% उसको फर्क आया। मतलब ये पेशेंट कब आया था अपने पास? 16/8 को। बाद में 26/8 को जब आया तो 40% उसको उपशय आया था, और अतिवृद्धि पूर्ववत। देखो गिरिज है, स्वर्णमाक्षिक भी डाला है ऑलरेडी, वो ठंडे ठंडे कल्प है, व्यानुदान काल में डाला है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा द्रव और शीत और स्निग्ध गुण की तरफ जाए, इसके लिए परिपाटादि काढ़ा दिया, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। गिरीश वर्णमाक्षिक वैसे रखा, रजनियोग रखा, और फिर द्रवगुण और शीतगुण बढ़ाने हेतु मैंने गुग्गुल की तरफ रुख किया। श्व मतलब बोक्षुरादि गुग्गुल, मार्केट का प्रिपरेशन है, पांचवधिक चिकित्सा में अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसको देने के बाद उसको रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। मतलब इसको जब द्रवगुण की अपेक्षा थी, द्रवगुण जब इंट्रोड्यूस किया, शीत और द्रवगुण, शीत गुण तो हम लोग दे रहे थे, गुरु और शीत गुण, जब द्रव और शीत गुण इंट्रोड्यूस किया तब जाकर उसको रिजल्ट आया। उसके बाद उदर परीक्षण भी देखो, वाम मूत्रपिंड 4/5 वगैरह, इसमें 2/8 को, उसके बाद 16/9 को जब आया था वो, तब मैंने बाद में और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिया। शुद्ध सुवर्ण गैरिक के अलावा मैंने दिया है दाड़िम भावित गिरिज। दाड़िम भावित गिरिज मतलब गिरिज यानी शुद्ध सुवर्ण गैरिक, उसको अनार की 3 भावना, अनार के जूस की 3 भावना देने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग दाड़िम भावित गिरिज। अब वो अनुपान देखो, अनुपान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मुझे पहले याद आना चाहिए था। देख, एक मिनट मुझे देखने तो, वहां पे लिखे यहाँ पे देखो, मैंने अनुपात दूध के साथ रखा है। हाँ, दूध के साथ रखा है। और जैसे मेरी पकड़ और बन रही थी उस व्याधि के ऊपर, तो हम लोग ने श्रीखंड के साथ दिया है। और काल देखो, काल काल दिख रहा है सबको? 16/9 का मतलब वो मराठी में लिखा है मैंने एक्चुअली। थर्ड फॉलोअप देखो उसका, 16/9/2023 को सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे दिया है दाड़िम भावित गिरीज प्लस स्वर्णमाक्ष। किसके साथ दिया है? श्रीखंड के साथ, यानी रसाला। श्रीखंड कैसा रहता है? साम्ल मधुर। और खंड, खंड मतलब पृथ्वी। हम लोग कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते हैं? सप्त खंड ना। 7 कॉन्टिनेंट मतलब क्या? मतलब जमीन के बड़े बड़े भूभाग है। कहते हैं आवाज आ रहा है अभी? एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में ही लेफ्ट हो गया नेटवर्क की वजह से शायद। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जब आप देखो, फिर गिरीश रात्रो घृत के साथ भी दी है, एसओएस। मतलब रात में अगर भूख लगता है उसको, खाने के बाद भी उसका पचन होने के बाद भुक्ते जीर्ण ताम्यति लिखा है ना, जीर्ण भुक्त्वा भुक्तम ताम्यति लिखा है। और ताम्यति मतलब उपतप्यते धातु, धातुओं का पाक हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी गिरीश दिया था एसओएस। भूख लगा तो तुरंत खा ले भाई। बाद में फिर से रजनी योग और दाड़िम भावित गिरीश सादे पानी के साथ 10 और 2 बजे दिए। ठीक है, 10 और 2 ये पित्त का काल है, पित्त की शुरुआत। और 2 बजे पित्त का एंड होने वाला है, फिर बाद में वात स्टार्ट होने वाला है। हमारे लिए तेज काल को 10 और
हॅलो सर आहे काय? हॅलो महेश सर. जस्ट अ मिनिट हा, मी बघते. सर तर लीव झालेले दिसत आहेत. Sir is joining in sometime, huh? Due to network issue, he got disconnected from mobile, or if possible from device, he will join and will conclude the session. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आपको ये सोचना है, मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट किया है, तब आपको जब मैंने शीत और द्रवगुण जब इंट्रोड्यूस किया उस भस्मक व्याधि के लिए और मेरा डायग्नोसिस पक्का था, उसके बाद वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। अब दिक्कत ये थी कि उसका जो शीतद्वेष जब था, कि उसको ये जब क्षुधा टलने के बाद जो 3-4 दिन तक ये होता था, क्या कंठदाह होता था, उसके बाद उसको थ्रोट इन्फेक्शन होता था, फिर कफ कोल्ड एंड फीवर ये होता था। अब ये सब चीज बंद करने के लिए हमें यही चिकित्सा की मदद हुई। इसके बावजूद क्योंकि हमारा डायग्नोसिस अच्छा था और यहाँ पे हम लोग यही सोच रहे थे कि जो विलोमित संप्राप्ति जो है, विलोमित मतलब जैसे राजक्षमा चिकित्सा के अध्याय में आया है कि अनुलोम और प्रतिलोम ऐसे दो संप्राप्तियां होती है। अगर उसमें अगर हम लोग देखते हैं ये चीजें, तो ये वो अतिदेश संप्राप्त तंत्र युक्ति की मदद से हम लोग सभी जगह पे वो अप्लाई कर सकते हैं वो सिद्धांत चिकित्सा का। तो विलोमित संप्राप्ति मतलब क्या है? वही उष्ण तीक्ष्ण गुण जठराग्नि के द्वारा, मतलब समान वायु और उदान वायु साथ में जाकर प्राण वायु को जब भी तंग करेंगे, तब प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा प्रतिशय डेवलप होगा। और प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद ये जब होता है आपका प्रतिशय, तब सिर्फ और वहां पे कभी भी त्रिभुवन कीर्ति की वजह से या चित्रकादि वटी की वजह से कभी रिजल्ट नहीं आएगा आपको, या कंसारित की या जो भी आप कल्प यूज करते हो, तो उसकी वजह से रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इट विल ऑलवेज हेल्पफुल व्हेन यू अप्लाई लॉजिक, कि आप जब उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करेंगे तब ये जाकर प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से जो प्राण वायु के द्वारा, यानी प्राण वायु का पांचोतिक संगठन वायु प्लस आप महाभूत है, तो वहां पे आप महाभूत इंद्रियों को संरक्षण करने के लिए इंद्रियां उपतप्त ना हो, क्योंकि इंद्रिया कहाँ पे शिर प्रदेश में है, उनको उपतप्त ना हो इंद्रियां भी,
नहीं तो सिंकोप या कोमा में चले जाएगा वो पेशेंट, यानी इंद्रिय हानि हो जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए नासा के द्वारा, नासा ही शिरसो द्वारम, तो शिर को अभी उपतप्त ना हो, इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए वहां से एक्सेसिव पानी छोड़ा जाता है, जिसको हम लोग प्रतिशय बोलते हैं। ठीक है, तो ये उष्णता जन्य प्रतिशय था उसको, ये मुझे बाद में समझा, और उसको रिजल्ट भी आ गया, अभी उसको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पास गिरिज अभी भी है, बट स्टिल मतलब वो कभी कभार लेता है, और बेसिकली इज फ्रॉम नागपुर, उसका जो जन्म है वो नागपुर का है, यहाँ पे वो ऑन डेप्यूटेशन आया है। ठीक है, तो ये उसमें ये थी पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें कुछ किसी को डाउट है क्या रिगार्डिंग केस? क्या है मैरफेनाइड हैबिटस, मतलब क्या? मुझे ही नहीं पता है। सर स्टार्टिंगला जो गिरीश दिया है उसमें वैनुदान काल में क्यों दिया है? 10 और 2 को क्यों नहीं दिया है? क्या होता है ना, जब हमारे पास जब पेशेंट अप्रोच होता है, तब हम लोग को बहुत घाई होती है, ये उसका एक प्रामाणिक उत्तर है। ठीक है, और तब हम लोग क्या करते हैं कि, एक मिनट, हाँ, तब हमें ये होता है कि व्यानुदान काल में जब भी देंगे, तो उदान काल इज वायु प्लस तेज महाभूत, व्यान काल इज वायु प्लस आकाश महाभूत। तो व्यान, सॉरी, वायु तेज और आकाश महाभूत बढ़ रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव मोड पे है, तब मैंने इसके लिए दिया था उस समय। ओके, देखो आपके पास है ना, दो तरीके से आप शूट कर सकते हो। इफ यू आर अ स्नाइपर, देन यू कैन शूट दैट टारगेट बाय टू मेथड्स। एक, अगर आप खुद स्नाइपर हो, शार्प शूटर हो, तो आप एक 100-200 मीटर दूर हो, या 200 फीट दूर हो, एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ गन, एंड यू आर शूटिंग, एमिंग एट हिज और हर हेड। ओके, और दूसरा क्या है, आप नजदीक से भी गोली मार सकते हो उसको बिना बताए, बहुत सारे लोग रहेंगे आजू बाजू में, उनका नेटवर्क बना के भी आप गोली मार सकते हो। तो आपको कैसे शूट करना है उस व्याधि को, उस व्याधि की संप्राप्ति कैसे आपको विघटित करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो जल्दी रिजल्ट आता है। इसके लिए औषध सेवन काल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जैसे मैंने सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे दिया, अगर ये मैं पहले दे देता तो और जल्दी रिजल्ट आता श्रीखंड के साथ। अनुपान भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुपान इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, श्रीखंड के साथ देना चाहिए था शुरुआत से ही। करेक्ट, ऐसा है, इस वजह से ज्ञानोदान काल में दिया। और किसी को कुछ डाउट है? शीत द्वेष सर, सॉरी, शीत द्वेष पांडु में भी आया है और आई थिंक ग्रहणी में भी आया है, तो उसका कुछ मतलब वो हिसाब से कुछ देखा दोनों था? जो व्याधियां है ना, वो क्षयजन्य व्याधि है, ये ध्यान में रखो। ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उसका क्षय हो जाता है, क्षय किसका होगा फिर, किसका क्षय होता है? टेल अबाउट अनुपान, टेल अबाउट अनुपान इज श्रीखंड वाई गिवन। अभी तो बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले कि श्रीखंड ये साक्षात पृथ्वी है, खंड यानी पृथ्वी महाभूत। जैसे कॉन्टिनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तखंड, सेवन कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, है ना। अब न्यूजीलैंड का अभी नया आया है, जीलैंड करके बोलते हैं उसको। ओके, तो खंड यानी पृथ्वी महाभूत। ओके, श्रीखंड। और उसमें अगर आप रस देखेंगे तो साम्ल मधुर बताया है, मतलब आम्ल रस तो रहेगा उसमें, बट उसके बजाय उसमें मधुर रस अधिक, मधुर रस का में पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत। ठीक है, तो उसका डिलेड हो जाता है श्रीखंड का। ठीक है, और 1 चम्मच लेने के लिए कहा था, नहीं तो अनुपान हम लोग है ना इतना इतना सा देते हैं, शहद इतना सा, ठीक है, दूध 1 सेब या 1 चम्मच, इतना इतना सा देते हैं। इन डायबिटिक पेशेंट हाउ टू अप्रोच? अभी हमारे हमारे यहाँ पे ये मनीषा मैडम है क्या? मनीषा मैडम है? नहीं है शायद, मतलब एक डॉक्टर है अपने,
तो उन्होंने उनकी माता जी थी। तो अभी उन्होंने क्या किया था, डायग्नोसिस एलोपैथी ने बहुत ज्यादा देखा कि बाबा हाइपरग्लाइसेमिया है, सॉरी हाइपोग्लाइसेमिया है, इसकी वजह से, सॉरी हाइपरग्लाइसेमिया इसकी वजह से भूख ज्यादा लग रही है। तभी इंसुलिन इंसुलिन बाकी सब मेडिसिन चालू थे, एंडोस्कोपी भी किया, दुनिया भर के टेस्ट किए। अब वो खुद भी डॉक्टर है, और उन्होंने सब ये टेस्ट करवा लिए, बट माता जी की भूख कम नहीं हो रही थी। ठीक है, और तब डायबिटीज है उनको, इस वजह से मैंने सिर्फ निम्ब भावित गिरिज दिया था। मैंने क्या कहा, निम्ब भावित गिरिज। तो निम्ब, ये क्या है, ये निम्ब युक्त गिरिज दीजिए। निम्ब का क्वांटिटी कम रखिए। वन, अगर 2 पिंच अगर आप गिरिज ले रहे हो, तो हाफ पिंच आप निम्ब रखिए। इससे क्या हो जाएगा, निम्ब ये तिक्त रसात्मक है, वायु आकाशीय प्रधान है, गिरिज ये पृथ्वी प्रधान है। तो तिक्त रसात्मक पृथ्वी अंदर जाएगी, ताकि क्लेट का भी शमन हो तिक्त रस से, बट उनकी अत्यग्नि जो बड़ी हुई है वो भी कम हो जाए। तो ऐसे हमें युक्ति से विचार करना पड़ता है। तो निम्ब भावित गिरिज या निम्ब, सॉरी निम्ब युक्त गिरिज। भावित तो गिरिज मैंने दिया नहीं, क्योंकि वी नेवर यूज सच काइंड ऑफ कल्पा, बट just because we have strong evidence of and strong knowledge of रसस एंड पांचोदिक संगठन, उसके बलबूते के ऊपर हम लोग ने ये किया, और उनको रिजल्ट भी आया था। जब तक मेडिसिन चालू थे उनकी भूख कम थी। और उसके बाद तो हम लोग ने अत्यग्नि, मतलब वो तीसरा पेशेंट है मेरा, कि जिनको हम लोग ने अत्यग्नि करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके, और किसी को कुछ डाउट? फिर यहाँ सर पे शुक्र लिखते हैं धातु, हाँ, शुक्र धातु के उत्पत्ति में इशू है, तो उसके लिए कुछ मतलब दैट कैन बी द कॉज, तो उसके लिए कुछ, या बस पृथ्वी पे। नहीं नहीं, पेशेंट मेरे पास जिस चीज के लिए आया था, तो वहां की पृथ्वी, मतलब उसका जो मेन कंप्लेंट था, क्या है ना, हम लोग पूछते हैं अभी पेशेंट को, मतलब मिसेज जो है इनफर्टिलिटी का कपल है बेसिकली। ठीक है, बट उन्होंने उसके लिए डिमांड की नहीं, तो हम लोग ने भी सामने से पूछा नहीं। मैंने प्रैक्टिस में एक ही सीखा है, हम लोग जब ज्यादा देने के लिए देखते हैं ना, तब पेशेंट दूर दूर भागता है। उनको जितना चाहिए उतना दे दो, उनका चिकित्सा से शमन करो, और अगर पेशेंट ने पूछा तो ट्रीटमेंट करो। ठीक है, ये सिंपल है। मैंने मतलब उस समय उसके लिए विचार नहीं किया था। शीतजनित व्याधि, यस। सर इसमें मतलब आपके केस में हमेशा हम, दूसरों केस में ऐसे भी हो सकता है ना कि सिर्फ शीत और रुक्ष गुण बढ़ने की वजह से ही भस्मक नहीं होता है, कुछ और भी गुण रहे होंगे जिसकी वजह से भस्मक होता है, तो उसमें हमें कल्पना फिर चेंज करके थोड़ा देना पड़ेगा क्या, योग, या फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही नहीं, रहेगा शीत थोड़ा और बहुत? रुक्ष गुण की वजह से बढ़ता नहीं, उष्ण और रुक्ष गुण की वजह से। क्या क्या सर शीत और आपका? रुक्ष की वजह से नहीं बढ़ता है, उष्ण और रुक्ष की वजह से बढ़ेगा ना। खास करके उष्ण तीक्ष्ण, और उष्ण रुक्ष, हाँ, तीक्ष्ण और रुक्ष, उसमें भी तीक्ष्ण, उष्ण इसके लिए और तीक्ष्ण रुक्ष, अग्नि। हाँ, तो इसके लिए हम लोग, हाँ, ये करते हैं। आज के इसमें मुझे मुझे शुरुआत से समझ ही नहीं रहा था वो संप्रप्ति, मेरा डायग्नोसिस फिक्स था, बट मुझे वो लक्षण समझ में नहीं आया। वो क्या बोलता था, मुझे ठंड से नफरत है, मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वो समझ में नहीं आ रहा था। ओके। बट वहां से सन्निकृष्ट हेतु मिलता था। ठीक है, और उसका मतलब उसको, वो जो प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता था उसका। समझ में आया बात? उस बार वजह बार से उसको प्रतिशाय प्रतिशा हो रहा दिया, था जिसको इसके हम लोग लिए। उष्णता जन्य प्रतिशा ऐसे कहते हैं पांचोतिक की हाँ, परिभाषा में। राइट। तो सर ये उष्णता जन्य प्रतिशाय तो और भी कारणों की वजह से हो सकता है ना, ऐसा उसका क्रॉनिसिटी था क्या भस्मक का? हाँ, ओके। यस, क्रॉनिसिटी था, मतलब वो पीड़ित ही था। अभी सर देखो उसका टॉन्सिल कितना रिमूव, टाइम? आई गेस 34 या 36 है, मैंने देखा नहीं ओ, केस पेपर में। ओके, हाँ। एज कम है। नहीं तो ऐसे तो राइनाइटिस साइनसाइटिस प्रतिशाय वाले तो काफी सारे रहते हैं ना, तो वी कैन नॉट उनको रूल आउट दैट त्रिकोण के पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं आते कोज। हैं, या लघु सूचेकर से, वहां पे हमें अलग सोच। अस्थिक्षय जन्य भी प्रतिशय होता है, मांस धातु जन्य भी प्रतिशय होता है, वो हमें समझ के लेना पड़ता है। ऐसे प्रतिशय के भी 7 टाइप्स है।
पांचवती कल सर से एक मेरा केस था, मुझे उसमें अभी तक भी डायग्नोसिस समझ नहीं आया वो भस्मक था या फिर वराइसिस था, क्या था। पेशेंट तो फिर भी 2 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद 1.5 महीने के बाद ही चला गया था। उसका थोड़ा मैं हिस्ट्री आपको शॉर्ट में बताती हूँ। 79 ईयर्स ओल्ड पेशेंट था। उनका क्रॉनिक एसिडिटी का हिस्ट्री, हाइपरटेंशन था उनको 20 साल से। एलोपैथिक मेडिसिन पे थे कंप्लीटली। मेरे पास आए अभी 2 महीने ही हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट बताया मेरे को कि बार बार मेरे को खाने से एसिडिटी होती है, जब भी खाने बैठता हूँ खाने के बाद हमेशा ऐसे जलन जैसा होता है। तो हमने सोनोग्राफी वगैरह कराया, मेडिसिन पहले गिरीज वगैरह दिया, लेकिन इतना कुछ कंट्रोल में नहीं आया। तो सोनोग्राफी कराया उनका। तो जो लीवर का मतलब जो हिपेटिक वेन्स जो रहती है ना हिपेटिक एरिया की, तो उसमें लूप्स बन गए थे। राइट, वो अंदर अंदर कुछ को क्रिस क्रॉस हो गया था। तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको फर्दर मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए, या तो फिर आप एंडोस्कोपी करा लो। तो एंडोस्कोपी में भी इतना कुछ आया नहीं, बस एमआरआई करने के बाद इतना समझ में आया कि उनका स्टमक का जो वॉल है ना वो भी एकदम थिन होकर गया है, और उसकी वजह से जो एंजाइम्स है ना वो कुछ ज्यादा एसिडिक हो गए हैं, तो उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है। ऐसा सच उनको कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं था। ही वॉज मतलब 79 की उम्र में भी काफी मतलब एक्टिव थे, योगासन वगैरह सब करते थे, लेकिन उनको सिर्फ हाइपरटेंशन का मेडिसिन चलता था और कोई मेडिसिन नहीं था। तो सर ऐसे केस में क्या सोचना है, क्योंकि भूख उनको बहुत लगती थी, मतलब उनका टाइम हुआ कि उनको खाना नहीं हाइपरटेंशन मिला का ना एंटी तो पूरा डायबिटिक घर उठाते ट्रीटमेंट थे। नहीं है ना? हाँ, क्या सर, आपकी आवाज कट हो रही है। एंटी डायबिटिक नहीं है ना? ट्रीटमेंट चालू था? एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट चालू था क्या? नहीं, वो प्री प्री डायबिटिक करके उनको डायग्नोस हुआ था 4-5 महीने पहले, जब उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने का था। लेकिन फिर वो तो ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल आ गया ऑपरेशन के बाद, तो ऐसा कुछ था नहीं। वो बोले कि मैंने तो कुछ स्वीट वीट वगैरह शादी में खा लिया था क्या उसकी है ना, वजह से। कभी कभी क्या होता है कि गिरीज इज नॉट अलोन वर्किंग इन सच कंडीशन। राइट। मतलब जैसे शुंठी और लहसुन में जो फर्क है, हम्म। और लंका यानी मिर्ची, हम्म। उसमें जो फर्क है तीव्रता में, तीक्ष्णता में, वही फर्क है हम्म। गिरीज, दाड़िम्बा विद गिरीज और स्वर्णमाक्षिक में। तो आपको ओके, तो कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द दाढ़ी टाइम भाभी यू हैव टू गिरी। गो फॉर प्रवाल आल्सो, विद्रुम। अच्छा, हाँ मैंने विद्रुम में विद्रुम स्टार्ट यूज मैं कराया क्यों था नहीं करता, उनको। क्योंकि मुझे महंगा पड़ता है। सी, आई ऑलवेज थिंक ऑफ मनी। राइट राइट। नहीं सर, मैंने उनको विद्रुम फर्स्ट विजिट में ही स्टार्ट किया था, क्योंकि एचटी का पेशेंट था ना, हाइपरटेंशन। तो मैंने सोचा कि नहीं, अस्थि मज्जाक्षय है उनमें तो क्रॉनिक है करके। तो मैंने पहले अस्थि मज्जाक्षय के लिए विद्रुम और साथ में फिर गिरिद दिया था। बट शायद मेरे को दाड़िम भावित गिरिद देना चाहिए था, तो शायद थोड़ा एसिडिटी जल्दी कंट्रोल में आता। क्या है ना, ठंडा पानी से नहाना है या बर्फ डालकर नहाना है, ये आपको तय करना अच्छा। पड़ेगा कि गर्मी कितनी है। हाँ नहीं, उनका हम लोग हमेशा का हिल था स्टेशन गरम की गरम खाना तरफ है। क्यों जाते हैं? जब गर्मी बढ़ती है तभी हम लोग हिल हाँ, स्टेशन की तरफ जाते हैं ना। बराबर। ऐसा है। तो वही सोच है जो हम लोग व्यवहार में करते हैं, हमें वही हम्म। चिकित्सा में करना है। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना? नहीं, मैंने उनका कोर्स जैसे सर उनका हिस्ट्री लेके कोर्स बहुत मेरे को फनी लगा, कि वो हमेशा मतलब 40 साल से गरम गरम गैस पर से उतरा हुआ खाते हैं। पहला राइस हम्म। बना तो उनको पहले थाली में चाहिए, ऐसे बॉईल होता हुआ ना वैसा खाते हैं। तो वो कोर्स हो सकता है, बाकी तो और कोई मुझे लगा नहीं उनका उष्णम लाइफस्टाइल और ये आत्मीयत सब करके देख है के। उसमें, विमान स्थान में उसका रेफरेंस है। अति हम्म। उष्ण भोजन करने के बाद क्या होता है? उष्णम हाँ। आत्मीयत, उसका रेफरेंस है शायद। राइट। ऐसा है। और तेजमेनम पचती, जो पंचमहाभूत है, वो कैसे कैसे काम करते हैं शरीर के वृद्धि के या क्षय के हेतु में। बराबर। शरीर भाव जो है ना, आई गेस चरक हाँ। विमान स्थान 5 में है शायद वो, स्रोत कल्पना में, स्रोतो विमान में। तो वहां पे है शायद वो रेफरेंस। ऐसा। वो मुझे इतना पृथ्वी डिटेल पता संहति, नहीं, तो मेरे को याद था कि ये तेजमेनम भी एक पचति, रीजन है है करके ना? उष्णता शरीर आपम में। स्वेदयति। हाँ। ऐसा। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक रुकते है। हैं यहाँ पे। ओके। धन्यवाद। यस यस।